وہ شخصیات جو دانشوروں کی دانشور ہے، آج میری نظریں ادھر اٹھتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ شخصیات ہی نہیں بلکہ ایک کہکشاں ہے جو لکھنؤ کے علمی ادبی اور سائنسی آسمان پر چمک رہی ہے۔ یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ آپ حضرات جو آج یہاں موجود ہیں، یہ وقار صاحب کی مہذب دیوانگی کا نتیجہ ہے۔ لکھنؤ میں بہت فنکشن بہت جلد سے ہوتے ہیں، لیکن اس سے اگر کنکلیوڈ کیجئے تو لگتا ہے کہ ابھی ہمارا ذہن پھیلا نہیں ہے، ابھی ہمارا ذہن تنگ ہے، اتنا جتنا عیسائیت میں اس زمانے میں پھیلنا چاہیے اتنا نہیں پھیل پایا۔ لیکن آج کا یہ پہلا جلسہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وقار صاحب کا ذہن جو ہے وہ لکھنؤ کی سرحدوں سے بہت آگے نکل چکا، اردو کی سرحدوں سے آگے نکل چکا، شعر و شاعری کی سرحدوں سے آگے نکل چکا، اور وہ سائنس جس نے پورے یونیورس کو اپنے قبضے میں کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اس سائنس کے نمائندوں کو عزت دینا، احترام دینا، یہ انہوں نے سلسلہ جو شروع کیا ہے، اس سلسلے کے لیے تاریخ لکھنے والا آنے والے دنوں میں انہیں یہ کریڈٹ دے گا کہ انہوں نے ہمارے ذہن کو وسعت دی، پھیلایا اور ایک طریقے سے نیشنل انٹیگریشن کو فروغ دیا کہ ہم اپنے میں سمٹے نہیں ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ہم اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں کہ دوسرا ہاتھ ہماری طرف آئے۔ اس لیے اس وقت ہندوستان کو سب سے بڑی ضرورت ہے دونوں ہاتھوں کے مل جانے کی، تاکہ قومی یکجہتی، نیشنل انٹیگریشن اور ایموشنل انٹیگریشن کا ایک ماحول جو ملک کو ضرورت ہے اور پورے ہندوستان کو جس کی ضرورت ہے، وہ ماحول کسی طرح بنتا جائے۔ اس کے لیے میں وقار رضوی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ آئیے ہمارے وائس چانسلر صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی گفتگو کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخصیات جنہیں اسٹیج پر تشریف لانا ہے انہیں میں ادب سے آواز دوں۔ ڈاکٹر اسد عباس صاحب نیورو سرجن ہے، وہ ایک شخص نہیں، ایک شخصیت ہے۔ ان کے ہاتھوں میں کبھی کبھی ہماری زندگی اس طرح سے آ جاتی ہے کہ اگر وہ ذرا سا بے توجہی برتتے ہیں تو ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن وہ 16-18 گھنٹے کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ رہے جو کہیں سے بے توجہی کی وجہ سے اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ ڈاکٹر اسد عباس جن سے مل کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا انٹلیکچوئل شخص، اتنا ٹیلنٹڈ شخص کیا اتنا شریف بھی ہو سکتا ہے، اتنا نیک بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ باوضو زندگی ہے۔ وہ سائنس کے آدمی ہیں، وہ نیورو سرجن ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں ایک ایسی شفا ہے کہ وہ جسے ہاتھ لگا دیتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہے تھے اور تھوڑی دیر روک کر کے مریض کو وہ دیکھنے لگے۔ یہ ان کی شخصیت ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہم انہیں آواز دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں۔ پروفیسر وسیم اختر صاحب جو انٹیگرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، میرے لیے اعزاز کی بات کہ وہ جب بھی ملتے ہیں ان کی شفقتیں مجھے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ علم اور تعلیم کے کاشتکار، میں انہیں وائس چانسلر نہیں کہوں گا، وہ جہاں جہاں علم اور تعلیم کی کوئی بھی زرخیز زمین ہے وہاں اسے
जोत कर, हल चला करके और फसल बो करके, सिंचाई करके एक लहलहाती फसल उगा देने का हुनर जानते हैं। उन्होंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जो फसल उगाई है वो इतनी लहलहा रही है कि उस फसल को देखने हिंदुस्तान ही से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं और रश्क करते हैं कि काश हमें ये हुनर मिल जाता जो प्रोफेसर वसीम अख्तर को मिला है, तो शायद हम भी तारीख के सफ़हात में जिंदा जावेद हो जाते। मैं उनसे अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, प्रोफेसर वसीम अख्तर वाइस चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की, वो आए और अपनी नशिस्त अख्तियार करें। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एसपी निमसे साहब, वो लखनऊ की इज्जत है, आबरू है। महाराष्ट्र का सारा खुलूस, महाराष्ट्र का सारा इल्म, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और तहजीबी सरबलंदियों और सरफराजियों की हिफाजत करते हुए वो लखनऊ आए हैं और लखनऊ की तहजीब में अपनी सलाहियतों को इस तरह से समो रहे हैं कि महाराष्ट्र और लखनऊ का एक संगम बना रहे हैं। उनकी शख्सियत का हम एहतराम करते हुए उन्हें आवाज़ दे रहे हैं कि नशिस्त उनका इंतजार करते हैं। हमारे वज़ीर मोहतरम अभिषेक मिश्रा जी अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, आ जाएंगे तो फिर मैं उस वक्त उनसे गुजारिश करूँगा। हमारे बहुत ही मोहतरम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खान मसूद अहमद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनकी शख्सियत सादगी, इनकिसारी, शराफत का एक पैकर, उनके यहाँ कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं। उनकी ज़िंदगी शहरी कम, गांव की ज़िंदगी ज़्यादा है। उनके यहाँ उनकी शख्सियत में खेतों खलियानों की महक है। वो गांव के पनघट से भी वाकिफ है। वो मलेशिया भी रहे हैं, दिल्ली जामे मिलिया में प्रोफेसर भी रहे हैं और लखनऊ की तहजीबी सरबलंदियों में आए, मगर अपने गांव की मिट्टी की खुशबू से उनकी शख्सियत अलग नहीं हुई। मैं उनकी शराफतों को, उनकी तहजीबी सरबलंदियों को, उनकी इंकिसारी को सलाम पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। प्रोफेसर छारी भुदौली साहब, जिन्हें सदारत फरमानी है, उन्होंने मुझे तो नहीं पढ़ाया, मेरे बेटे को जरूर जेएनयू में पढ़ाया, लेकिन उनकी किताबों को पढ़ करके मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि काश उन्होंने मुझे भी पढ़ाया होता तो मैं कितना खुशकिस्मत होता। वो दानिश्वरों के दानिश्वर हैं। इस वक्त उर्दू तनकीद जो है, उर्दू क्रिटिसिज्म उनकी शख्सियत पर नाश करती है। वो किसी के लिए दो जुमला या एक पैराग्राफ लिख देते हैं तो मोतबर और मुस्तनद हो जाता है। मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि किसी दिन मेरे सिलसिले में भी एक पैराग्राफ लिख दें ताकि मैं भी मोतबर हो जाऊँ। वो आप सदारत फरमा रहे हैं। आज 5 सितंबर टीचर्स डे। टीचर कितना मोहतरम होता है। अगर टीचर न होता तो दुनिया शायद वीराना बनी रहती, ये चमनदार और गुलिस्तान न बन सकती। टीचर का एहसान इंसानों पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हुआ करता है। आज टीचर्स डे के मौके पर ये प्रोग्राम मुनक़िद है और सबसे ख़ास बात ये है कि साइंस के लोग, खुसूसन केमिस्ट्री के लोग, जितने यहाँ प्रोफेसर, हेड, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो आज मदऊ किए गए हैं, वो आए हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, इसलिए कि पूरी ये सदी जो है, ये सदी साइंस की सदी है। अगर साइंस को अलग कर दिया जाए तो फिर हम कई सौ साल पीछे हो जाएंगे। तो जो लोग साइंस का मैदान, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई मैदान हो, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं
उनका एहतराम करना हमारे ऊपर वाजिब है, लाजिम है, इसलिए कि वो दुनिया को हसीन और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना दुनिया इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कभी कभी तो आदमी मरने की दुआ मांगता है कि इतने बुरे मनाजिर जो देखने को मिल रहे हैं शायद हम न रहें तो हमें न देखने को मिले। तो साइंस के लोगों को मैं फिर एक बार उनका एहतराम करते हुए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि वो दुनिया को हसीन और खूबसूरत बना रहे हैं। आज यहाँ लिखा हुआ है इमाम जाफर सादिक ग्रेटेस्ट टीचर एंड फाउंडर। दोस्तों, हर कौम और हर मुल्क में कुछ शख्सियतें ऐसी पैदा होती हैं कि वो पूरी कौम उन शख्सियतों का ही एहसानमंद रहती है, उनकी खिदमत की कर्जदार रहती है, मकरूज रहती है उनके इल्मी एहसानात की। हमारी तारीख में 1400 बरस की तारीख में इमाम जाफर सादिक एक ऐसी शख्सियत गुजरे हैं कि हमारी पूरी नस्ल, पूरी इस्लामी तारीख, पूरी इंसानी तारीख अगर उन्हें गौर से पढ़ लेगी तो उनके एहसानात का कर्ज नहीं उतार पाएगी। उनकी शख्सियत मजहबी थी, लेकिन साइंस के मैदान में उन्होंने ऐसे ऐसे शागिर्दों को पैदा कर दिया है जिन शागिर्दों ने पूरी तारीख 1400 साल की तारीख को रोशन किया है। उनके नाम से आज की ये शाम जुड़ी है, वाबस्ता है। इसलिए हम उनका एहतराम करते हुए और वक़ार रिजवी को एक बार फिर मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन्होंने ये मौका निकाल करके हम लोगों को मौका दिया है कि हम हज़रत इमाम जाफर सादिक के सिलसिले में पढ़ें। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हिंदी में और अंग्रेज़ी में किताबें शाये करवा के हमारे इन करम फरमाओं को दी जाएं, ताकि वो ये महसूस करें कि इल्म जो है दुनिया के हर खित्ते में उतरा है और इंसानियत के सरपरस्त दुनिया के हर खित्ते में पैदा हुए हैं। हम जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक न अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकेंगे, न दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकेंगे। इसलिए आज की ये शाम जो हज़रत इमाम जाफर सादिक के नाम से मानमन और मंसूब है, वो हमारी तारीख में इंसानियत के पहले टीचर हैं और एक ऐसी दानिशगाह उन्होंने कायम की जिस दानिशगाह से हज़ारों साइंटिस्ट पैदा हुए, हज़ारों इल्म की मोतबर शख्सियतें पैदा हुई। तो आज की इस शाम के लिए जो उनके नाम से मंसूब है, इसके लिए मैं वफ़ार रिजवी को मुबारकबाद दे रहा हूँ और गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी बात होती रहेगी। सबसे पहले मोमेंटोस पेश किए जाएंगे। निमसे साहब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो हम लोगों के लिए इज्जत और आबरू हैं, उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे। प्रोफेसर शारिक गढ़वी साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस.पी. निमसे साहब को शारिक साहब को पेश करें। अब मैं मोहतरम अब्बास मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आली मरतबत प्रोफेसर खान मसूद अहमद साहब को मोमेंटो पेश करें। विशाल कपूर, मेंबर उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। प्रोफेसर वसीम अख्तर साहब
बेटा हुसैन अंसारी साहब जो चेयरमैन उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक महासभा हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और बड़ी महत्वपूर्ण अवसर का वसीम अख्तर साहब। बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर असद अब्बास साहब को वक़ार रिजवी साहब से इत्तेफाक है कि वो तशरीफ लाएं। शायरी साहब से गुजारिश करूँगा कि अनवर जलालपुरी साहब को एक मोमेंटो पेश कर दिया। इस मौके पे हर साल एक अवार्ड हम लोग पद्मश्री प्रोफेसर मेहदी हसन साहब के नाम से भी देते हैं। तो मैं चाहता हूँ उनके बेटे हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजेंसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर अली अब्बास मेहदी साहब मौजूद हैं यहाँ, उन्हीं के दस्ते मुबारक से एक अवार्ड हम लोगों ने चुना है यूनिटी कॉलेज की दीना शुक्ला के लिए। मेहदी हसन साहब के लिए जितना हमने सुना और लोगों ने बताया कि वो जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे, एजेंसी में रहे, तो अपने शागिर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे कि वो उनसे तालीम हासिल करते रहें। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा भी 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल रहते थे। ऐसी एक सिफत जब हम लोगों ने ढूंढी तो लीना शुक्ला में भी मिली, जिन्होंने लामार्क्स में अपनी तालीम हासिल किया। फिर कानपुर से एमएससी करने के बाद यूनिटी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाती हैं और वो 24 आवर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि वो उनसे इल्म हासिल करें और उनके लिए हर वक्त मौजूद रहती हैं। मैं चाहता हूँ वो तशरीफ लाएँ टाइप पे और अपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर निमसे साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी खिदमत में अवार्ड पेश करें। पास मेहदी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो डायस पे तशरीफ ले आएँ। उनके वालिद साहब के नाम से ये अवार्ड है जो हर साल यहाँ पे बहुत वक्त नहीं लेना है, थोड़ा सा प्रोग्राम के ऐसा प्रोग्राम करने की क्यों सोची। टीचर्स डे आपने कल से आज तक अखबार में पढ़ा कि टीचर्स की वैल्यू हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। जब बच्चा माँ की आगोश से आगे बढ़ता है तो वो टीचर के ही पास जाता है और टीचर्स के साथ ही उसको अपने कैरियर बनाने तक रहना पड़ता है। अभी अबुल कलाम ने आखिरी वक्त जब उनसे पूछा गया कि उनको एज ए प्रेसिडेंट, एज ए मिसाइल मैन किस नाम से जाना जाए, तो उन्होंने यही कहा कि ये सब नहीं, अगर मुझे एक टीचर के नाम से जाना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आजकल के शागिर्द अपने टीचरों की कैसी रिस्पेक्ट करते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल एक प्रोग्राम में प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद जो यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो एक तकरीर कर रहे थे कि साहब एक दिन इनकम टैक्स से एक इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि इनकम टैक्स कमिश्नर साहब हमसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो एक इंस्पेक्टर काफ़ी था, ये इनकम टैक्स कमिश्नर मेरे घर पे आके क्या करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं। तो वो उनके घर पे बहुत गलियों में है, उनके घर पे मिलने गए। तो उन्होंने कहा साहब बताइए कैसे आप तशरीफ लाए। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पहचानते, आज से 50 साल पहले आजमगढ़ में शिवली कॉलेज में आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाया था और मैं टीचर्स डे पे यहाँ लखनऊ में और किसी को नहीं जानता, तो एक टीचर के उसमें मैं आपके पास आया हूँ और वो अभी तक हर टीचर डे में उनके पास ज़रूर जाते हैं। पहले कॉलेज में प्रोफेसर शाहिद साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा भगवान राम के आगे हम सब लोग सर झुकाते हैं, लेकिन वो अपने गुरु वशिष्ठ के आगे सर झुकाते थे।
तो गुरु का मर्तबा ये है, और गुरु अपने शागिर्दों से पहचाना जाता है। अगर अर्जुन और कर्ण ना होते तो शायद द्रोणाचार्य को कोई ना पहचानता। ऐसे ही आज टीचर्स डे पे हमने जिस नाम का सिलेक्शन किया, ये नाम तारीख में बहुत लोग जानते हैं। केमिस्ट्री का उस वक्त जब उन्होंने वो यूनिवर्सिटी खोली तो बहुत से शोबे थे, बहुत से डिपार्टमेंट थे और बहुत से लोगों ने वहाँ से इल्म हासिल किया। लेकिन एशियन केमिस्ट्री में आप डॉक्टर असद अब्बास साहब इसके बारे में कुछ आपका वक्त लेंगे बताने के लिए। केमिस्ट्री वालों को इसलिए यहाँ पे रहमत दिया कि उन्होंने जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं वो उनके शागिर्द थे। उन्होंने कई जगह कोट किया है कि ये हमने जो सीखा ये कहाँ से सीखा। हम लोगों ने तारीख में उनको भुला दिया, तो सोचा हर बार टीचर डे में किसी ऐसे को याद करें जिसने बहुत बड़े बड़े शागिर्द दिए, लेकिन हिस्ट्री ने उनको नजरअंदाज कर दिया, उनको भुला दिया। इसलिए मैंने तमाम केमिस्ट्री वालों को रहमत दिया। इतने लोगों को एक साथ अवार्ड देने का मतलब भी ये था कि हर बार एक सब्जेक्ट चुनते हैं, तो अगर कुछ लोगों से हर जगह से एक चुनते तो बहुत से लोग हमारे साथी छूट जाते। मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उनका कंट्रीब्यूशन अपनी फील्ड में बेमिसाल है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि वक्त कम होता है। तो इंडिविजुअल किसी एक के बारे में उनकी पूरी तफसील बताना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जब हम ये अवार्ड देंगे, जलालपुरी साहब आएंगे तो उनके नाम के साथ ही उनको दिया जाएगा, लेकिन उस नाम के पीछे उनकी तमाम सिफात छुपी हैं, उस सब को आप लोग जानते हैं। उनके सीवी मेरे पास है, अगली बार हम अखबार में एक एक करके उसको शाया करेंगे, जिससे आप लोग जान जाएंगे। आप लोग फिर यहाँ पे तशरीफ लाए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस ज़हमत करने का। मैं जलालपुरी साहब हज़रात, माजी में, अतीत में हिंदुस्तान और अरबों के दिए हुए ज्ञान पर आज यूरोप के विज्ञान की इमारत की ज़रूरत इस बात की है हम फिर एक बार यूरोप को समझें और यूरोप को ये समझाने की कोशिश करें कि अतीत में, वर्तमान में हमने, एशिया ने, हिंदुस्तान ने, अरबों ने यूरोप को क्या क्या दिया। हिंदुस्तान का ज्ञान और यूरोप का विज्ञान, इन दोनों के संगम पर ही इस वक्त पूरी दुनिया को स्नान करने की ज़रूरत है। अगर हम इसे महसूस कर गए कि हम दुनिया को ये बताएं कि हम क्या थे, हमने क्या क्या दिया है और यूरोप से हमें क्या मिला, इन दोनों को समझने की कोशिश जो वक़ार भाई कर रहे हैं, मैं इसके लिए उनकी इस मुहज़्ज़ब दीवानगी को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। अब आइए, आज का जो की नोट्स है, कलीदी खुतबा है, जो बुनियादी तकरीर है, वो मोहतरम डॉक्टर असद अब्बास साहब की, वो हमें ये बताएंगे अपने मखसूस अंदाज में कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या थी, उनके शागिर्द जाबिर बिन हय्यान जिनकी शख्सियत से अलजबरा जुड़ा हुआ, उनकी शख्सियत फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बहुत मोहतरम शख्सियत थी, उनके शागिर्दों ने क्या क्या दिया है दुनिया को, ये सारी बातें मोहतरम असद अब्बास साहब की ज़बान से आप सुनेंगे। तो मैं इसके उद्घाटन के लिए, इसके इफ्तिताह के लिए, इसके बुनियादी खुतबे के लिए आली मरतबत मोहतरम डॉक्टर असद अब्बास साहब से अदब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। First of all, I would like to thank Awadhnama Charitable Trust, Professor Shari Rudolfi Sahab, President of the Trust, and Waqar Rizvi Sahab, to giving me this opportunity to talk about a personality whom the Islamic world considered as the greatest scientist, the greatest teacher, and founder of the first Muslim university, and whose students excelled in many fields, and one of them was considered as the father of ancient chemistry. Once I am going to talk about this, what a coincidence today. Today is 5th September.
we are celebrating the birth anniversary of our second president, Sarvapalli Radhakrishnan ji, and today is Janmashtami also. तो मुझे कबीरदास जी का वो दोहा याद आता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आज हम गुरु की पूजा कर रहे हैं और हमारे सामने भगवान सरकार की पूजा। राधा कृष्णन जी was a professor at University of Calcutta and University of Oxford. I just want to share a moment in the life of Professor Radhakrishnan. He, being a professor of a serious subject like religion and philosophy, जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो मैंने एक स्टोरी उनकी बायोग्राफी में देखी। एक बार कुछ ब्रिटिशर्स की पार्टी हो रही थी जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी मौजूद थे। एक अंग्रेज ने आकर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सामने ये बात कही कि भगवान ने हम लोगों को स्पेशल तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है और हमको अलग तरीके से बनाया है, इसीलिए हम इतने टॉल होते हैं और इसीलिए हम इतने गोरे होते हैं। राधा कृष्णन जी का विट और ह्यूमर देखने की चीज़ है कि आपने तुरंत उससे कहा कि नहीं, ये बात यूँ नहीं है, बल्कि भगवान ने पहले जब उन्होंने एक बात बताई सर कि भगवान ने जब एक रोटी बनानी चाहिए तो जब वो रोटी थोड़ी कच्ची रह गई, बहुत वाइट रह गई, तो उससे इंग्लिश रेस को बनाया और जब उसको और थोड़ी देर तक उस पर मेहनत की, जब वो और पक गई उससे फिर अफ्रीकन रेस को बनाया। और व्हेन गॉड बिकम परफेक्ट, जब भगवान ने पूरी परफेक्शन के साथ रोटी बनाई तो उससे हम इंडियंस को कंस्ट्रक्ट किया। I just want to quote two statements of our greatest teacher, Professor Radhakrishnan ji. He said, books are the means by which we build bridges between cultures. And knowledge gives us power, love gives us fullness. A real example of these two statements is sitting here, जनाब अनवर जलालपुरी साहब। अभी वक़ात भाई ने आपको बताया कि इन्होंने जो किताब लिखी है ये उर्दू शायरी में की था। तो it is the best example of mixing of the cultures and love supreme over the knowledge. When I was going through the Teachers' Day, I found few interesting facts. Before starting my talk about Imam, I just want to share a few things with you. The 5th September was started in 1962 as Teachers' Day in India, but this Teachers' Day is celebrated worldwide on different dates. Two interesting dates: 5th October is International Teachers' Day, and 20 countries share 5th October as their Teachers' Day. And 28th February is the next date, which is being shared by the 11 countries as their Teachers' Day. So these are the few facts I just want to share. जब हम लोग इस बात के लिए बैठे और ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया वक़ार रिजवी साहब के साथ, और ये हुआ कि हमें किसी एक सब्जेक्ट को चुनना है कि जिस सब्जेक्ट के टीचर्स को ऑनर किया जाए। We have selected chemistry. I myself being a practicing doctor, I know the value of chemistry. जो हमारा मेडिकल का करिकुलम होता है, हमें बायोकेमिस्ट्री से लेकर जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी तक ऑलमोस्ट 15 और 16 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम फ्यूचर में अपने पेशेंट्स को देखते हैं और ह्यूमैनिटी को सर्व करने की कोशिश करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है अपनी कंप्लेंट्स के साथ, तो उसकी हिस्ट्री और उसको एग्जामिन करने के बाद जो भी नॉलेज हमने अपनी मेडिसिन से, एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से हासिल की है, उससे एक डायग्नोसिस बनाते हैं। Then we take the help of the physics. We order certain investigation, X-ray, CT scan, MRI, and latest investigation. These are all given by the physics people. But for patient, the most important aspect is treatment. Once we put out our pen to write a prescription, जैसे ही हम अपनी दवाएं लिखने की शुरुआत करते हैं, this is all because of the help of you teachers of chemistry. Because chemistry is the parent branch of the pharmacology. Whatever medicine we have in our armamentarium is all because of you. One more statement of Sarvapalli Radhakrishnan ji, just a second I want to share with you. He said that teachers should be the best minds. पुरानी कार होती थी, नई से ज़्यादा महंगी, इसका प्रीमियम था, परमिट मिलता था IAS अफसरों को फेल करके, वो शांति को फेल जाती, क्लास में 5-6 साल लेकर 6 लगी, वो रख देते थे, आप देखते नहीं, पूरी क्लास पढ़ाते थे, उसके बाद में एक किताब उठाते थे, बोल के पेज नंबर वो पेज नंबर बताते सबको,
इन किताबों से, इन पेज नंबर से आप पढ़िए, ईमानदारी देखिए ना। आज बहुत सारे प्रोफेसर वो किताब नहीं बताते जिससे खुद पढ़ते, कभी भी उस किताब को नहीं बताएंगे जिससे खुद पढ़ जाते, ठीक है ना। तो वो सारी किताबों के पेज में बताते हैं ये रेफरेंस है, यहाँ से मैंने पढ़ा, तुम भी वही सीखो। ये मतलब उनको देख के ऐसा ये सब चीजें जब जम जाती दिमाग। जल्दी में एक दो और जो बहुत ही आला किसी के टीचर होते हैं उनकी मिसाल देखे। फिर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, एमफिल की, वहाँ मैंने पीएचडी की। तो वहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों का बोलबाला सुनता है, ये आप लोग को नहीं पता होगा शायद। प्रोफेसर खलीक नकवी थे, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स करके गए थे। राधा कमल मुखर्जी के, डीपी मुखर्जी, इन लोगों के शागिर्द थे, बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। प्रोफेसर एएन नागर थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से मेरा 50 में, है ना, 58 में तो वो आईआईटी में आ गए थे, कानपुर में एसोसिएट गोल्ड मेडलिस्ट थे लखनऊ यूनिवर्सिटी। नीदरलैंड से पीएचडी करके आए। 9 बजे ठीक, यानी कुछ जमाने के प्रोफेसर हमारे तो सेम भी रहते थे मॉडल टाउन में, नोबेल लॉरेट नागर साहब भी रहते थे, मेरे सुपरवाइजर एसडी गुप्ता भी रहते थे। सब लोग मॉडल टाउन में, सब साइकिल से आते थे, कोई कार से नहीं आते। सारे लोग, आप साहिब साहब भी रहते थे मॉडल टाउन उस जमाने में। सारे प्रोफेसर, बड़े बड़े प्रोफेसर साइकिल से आया करते, 9 बजे आते थे, 6 दिन तक एसी थे नहीं, तो एफिशिएंसी लॉस होने का कोई सवाल नहीं। तो मतलब वो जो चाहे आ जाए, खुला दबा रहे। नागर साहब बहुत ही डिफिकल्ट इकोनॉमेटिक्स का पोर्शन पढ़ाते थे, और इंडिया के मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमेट्रिशियंस व्हिच इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, जो नागर साहब, उनके 30 स्टूडेंट उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जो पूरी दुनिया में आज खुद में अपने में एक बड़ी चीज बन गई। जिसमें से एक अमानुल्लाह साहब है, जो फिरंगी महल में रहते थे, और वो भी टॉपर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स में। और शिया डिग्री कॉलेज का रिप्लेसमेंट हो गया तो निकाल दिया, तो निकाले गए, और फिर शायद नहीं रहे, निकाल दिए गए, तो पीएचडी करने चले गए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नागर साहब के साथ। आज की तारीख में इतना बड़ा नाम अमानुल्लाह का है, अब लोग उनके इंटरनेशनल सेमिनार्स अमानुल्लाह पे करते हैं, उनपे पीएचडी हो रही है। इतना कंट्रीब्यूशन उनका, नॉन पैरामेट्रिक इकोनॉमेट्रिक्स, एक नई ब्रांच इकोनॉमेट्रिक्स की खोली है। ये नागर साहब के, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं सब। तो मैं बताना चाहता हूँ, क्लास में नागर साहब जब आते थे, पढ़ाते थे इकोनॉमेट्रिक्स में, क्योंकि ऐसे आते थे, टहलते हुए आते थे, और पहली सीट में जो बच्चा बैठा होता था, एक साइड में 120 नंबर का पान दबाए रहते थे, दूसरी साइड में गुलाब जामुन खा लेते थे। मतलब 120 नंबर का पान दबा हुआ है, इधर से गुलाब जामुन खा रहे, उससे क्या मतलब है? तो वो बहरहाल नागर साहब क्लास में आते थे, उसके बाद सीधे बोर्ड पे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाना शुरू कर देते थे। लिखते थे जैसे लगता था कैलीग्राफी, वो अल्फा बीटा थीटा गामा फाई साई कैलीग्राफी भी चौक से लिखते थे, देखने लायक होता था वो। तो ये सब देख देख के लगता था कि काश इसका 10% हम बन जाए अगर कभी जिंदगी में। मेरे पीएचडी गाइड नहीं थे, मेरे पीएचडी गाइड थे प्रोफेसर एसडी गुप्ता, वो भी एक चीज थे, कहते थे कोई अपॉइंटमेंट कभी मुझसे मत लेना, सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक किसी टाइम आके घर की बजा, जब कोई तकलीफ हो सीधे चले जाओ घर से। वो मेरे घर के रास्ते में पड़ता था, माल रोड पे रहते थे, दिल्ली स्कूल से आया था, मैं शाम के टाइम भूख लगी रहती थी, तो फांसी पे जाता था। तो उस टाइम जो है अपना वो अपना उनसे अपनी बातचीत भी करता था, और बेहतरी नाश्ता भी मिलता था उनके वहाँ खाने को, फिर अपना कर सकता। तो ये टीचर्स ऐसे थे कि मतलब जितनी मैं उनको चैप्टर लिख के देता था, तो मैं समझता था 15 दिन बाद वापस करूँगा। तो टेलीफोन में बात नहीं था, तो नागर साहब को फोन करते थे, वो नागर साहब से रोज मिलता था, उनको
पान खिलाने को जाना पड़ता था दुकानों पे, जहाँ वो पान खाने जाते थे उनके साथ शैडो की तरह जाना पड़ता था। तो वो अभी जो सूरज का फोन आया था तो थोड़ा चैप्टर पढ़ लिया। तो जो हफ्ते भर 15 दिन का काम होता था वो हफ्ते में 4 दिन में चैप्टर पढ़ देते थे। तो आज समझ लीजिए मैं पार्ट टाइम पीएचडी में 3 साल हो गए, जबकि मैं जाने मीडियम पढ़ा भी रहा। इस तरह के टीचर्स मिले जो मतलब बिना कागज पेंसिल कोई किताब कागज के बगैर ऐसे ठहरते हुए आते थे और मुश्किल से मुश्किल डेरिवेशंस, क्योंकि वो ओरिजिनल थिंकर थे, ओरिजिनल उनका काम था उस ब्रांच में, जिस चीज को पढ़ाते थे उसमें उनकी ओरिजिनल पेपर्स थे। तो उनको क्या तो सब फर्स्ट प्रिंसिपल से सब चीज ड्राइव करते थे। वही सब चीजें हम लोगों ने उनसे सीखा और अब मुझे 42 साल हो गया पढ़ाते हुए, शायद आपको 73 में मैंने एमए किया वही आगजनी वाले साल में, और थोड़ा लेट रिजल्ट निकला क्योंकि एक काफी जल गई थी, तो फिर से वो पेपर देना पड़ा। तो अगस्त 73 से मैं जीएफआर शाहजहांपुर में लेक्चरर हो गया था। उसके बाद में दिसंबर 74 से परमानेंट हो गया। तो तब से आज तक मेरी नॉन प्रोफेन कंटिन्यूअस टीचिंग है। मैं मलेशिया में 5 साल रहा और जहाँ गया मलेशिया में मुझे बार बार कहा गया कि डिजाइन कर दो, अब इंडिया वापस जाने की जरूरत नहीं रहो। मतलब इन लोगों से मैंने सीखा था, उसका मैंने 5% की अगर उनकी नकल की मैंने, उससे मुझे इतनी मेरी साख बनी कि मैंने मलेशिया में वाइस चांसलर पार्टी में कहा अभी मैं तुम लिख के अपना जो थैंक्स का लेटर तुमने दिया वापस ले लो, तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। फोटो क्या इंडिया में वापस अगर कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अप्रूव होके कहीं फॉरेन में रहना, ये देखता था जाओ थोड़ा बहुत मार के जाओ फिर चले जाओ, थोड़ा अपना काम चलता है। और ये कि हमेशा के लिए रहने की कोई ख्वाहिश नहीं। तो मैं वो ठाकुर नमक्या सिंह, वो प्रोफेसर बलजीत सिंह, वो प्रोफेसर नागर, वो प्रोफेसर गुप्ता, कोई भी अब आज नहीं है दुनिया में, पर इन लोगों को मैं हमेशा याद रखा हूँ। और मैं भी क्लास में जाता हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने, ना कोई कागज ना कोई किताब, एक्सटेम्पोर पढ़ाता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं 1% में नागर हो जाता अगर मैं मेरी जिंदगी सफल हो जाती। तो मैं सारे अपने गुरु लोग हैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका एहसान अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह मैं कल गया था जो नई IAS अकेडमी बनी है, तो वहाँ पता चला कि कल पहला दिन है। तो मुझे नवाब देवबंदी साहब ने कहा कि आ जाइए, तो मैं चला गया। मैंने उनसे पूछा कि कितनी देर का टाइम है आप, कह रहे जितना मत जाए आपकी मर्जी। मैं समझा कि ठीक है मर्जी। तो 1.5 घंटा जब हो गया तो मैंने लड़कों से कहा बस करें, कहेंगे सर अभी तो वार्म अप हो रहे हैं। 1.5 घंटे बाद वो बोले सर अभी तो वार्म अप हो रहे हैं। तो मैं वहाँ से 4 बजे घुसा था, 7:15 में निकला। नवाब देवबंदी साहब आराम से मैं बैठ रहे आधे घंटे में पढ़ा के निकल जाता है, मैं अपने ऑफिस आता हूँ। अब इनके चक्कर में मैं यहाँ ठहर रहा हूँ। बोले यार आप जरूर पूरी आसानियत दिखा दीजिए। मैंने कहा मैं क्या करूँ जब बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसमें बाहर निकल के आ गया फिर भी घेरे हुए हैं। तो टीचर की कोई जिम्मेदारी है, जब तक घर का चाहता है तब तक हम घर नहीं। तो बस और मैं कुछ ये दूसरा साहब ने जो कुछ बताया उससे एक बात याद रखिए, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, आज से कुछ साल बाद कहीं ऐसे ही सेमिनार हो रहा होगा, कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, आप लोगों के बारे में भी कोई ना कोई ऐसे ही कुछ बातें बताएंगे। तो आप लोग याद रखिए जो लोग पढ़ाते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही कुछ सीखे और ऐसे ही कुछ आपको याद करें। मेरे भी एक स्टूडेंट थे शिया कॉलेज में, मैं जब बीकॉम कर रहा था, जैसे वहाँ से डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। ठंड के ज़माने में शिया कॉलेज में कोई क्लास अटेंड करने नहीं जाता था। सुबह 6:30 बजे अकाउंट का क्लास होता था, लेकिन 6:30 बजे हम लोग ठंड में भी वहाँ जाते थे और बाहर विंडो के बाहर लोग खड़े रहते थे सिर्फ उनका क्लास अटेंड करने के लिए, उसके बाद फिर चले आते थे। तो ये हमारी पर्सनैलिटी भी है। डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे। तो ऐसे अगर टीचर जिनको भी मिले उन स्टूडेंट्स के लिए खुशकिस्मती है।
कि ऐसे टीचर्स उनको पढ़ाने को मिले। आप लोगों के भी स्टूडेंट ऐसे होंगे, आपको याद करेंगे, बाद में आप लोगों के बारे में करेंगे। बहुत वक्त ले चुका मैं इनसे साथ को, बहुत देर से बैठे हुए हैं, पर थोड़ी सी जहमत और है क्योंकि सबसे सीनियर होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और उनसे मैं याद आया और हमेशा शारिफ साहब कहते हैं सदारत मुझे दे दी जाती है, तो जहाँ होता है मुझे पूरे घंटे बैठना पड़ता है, ये मजबूरी होती है सीनियर लोगों के साथ। मैं डॉक्टर यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा कि जवानी समय रह गए हैं, आपकी मरला है। डॉक्टर D.A. हैरिसन साहब, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, वो तशरीफ रखते हों। बहुत सीनियर टीचर हैं, करीब मैंने जहाँ तक सुना है, अगर वो सही है 39 ईयर से वो पढ़ा रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स होंगे दुनिया में, कहाँ कहाँ होंगे। डॉक्टर D.A. हैरिसन साहब, डॉक्टर अनिल अग्रवाल साहब DAV कॉलेज, डॉक्टर अनिल अग्रवाल साहब DAV कॉलेज। उसके बाद डॉक्टर D.K. अवस्थी साहब से गुजारिश है, डॉक्टर अनिल अग्रवाल साहब DAV कॉलेज। डॉक्टर D.K. अवस्थी साहब डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री JNCT, डॉक्टर फॉर्म जय नारायण कॉलेज उसके बाद अजय मिश्रा जी हैं JNUG कॉलेज से। के बाद उनके अवस्थी जी से BSHVB, बहुत लंबे नाम है ऐसे शॉर्ट में। डॉक्टर अजय मिश्रा जी JNUG कॉलेज। डॉक्टर कुत्सिया बानो महिला कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डॉक्टर अवस्थी जी हैं आपके सामने। डॉक्टर कुत्सिया बानो, डॉक्टर जहरा मसूद, डॉक्टर जहरा मसूद IT कॉलेज। डॉक्टर जहरा मसूद IT कॉलेज। उसके बाद डॉक्टर अर्चना तलवार IT कॉलेज। डॉक्टर जहरा मसूद के बाद डॉक्टर अर्चना तलवार, डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, वो भी IT कॉलेज से हैं, सब डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के हैं। रहमत जी के सबको बहुत बहुत उनका दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चाहता ये था 5:30 बजे प्रोग्राम शुरू कर दूँ, लेकिन खान मसूद, डॉक्टर वसीम अख्तर डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर मीना श्रीवास्तव। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मोहतरम प्रोफेसर S.V. निमसे साहब को आवाज़ दूं, साहिब लुधियानवी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे मिला है वो लौटा है। कोई भी थिंकर, कोई फिलासफर, कोई वाइस चांसलर, कोई अच्छा लेक्चर पूरी जिंदगी सीखता है, वही अवाम के सामने पेश कर देता है, और अवाम अगर गौर से उसे सुने तो उसमें उनकी जिंदगी की बहुत सी कीमती किताब से लिखी जा सकती है। प्रोफेसर निमसे साहब इतने सीनियर हैं, इतनी दुनिया उन्होंने देखी है कि वो जो कुछ भी गुफ्तगू करेंगे हम समझेंगे कि हमारे जहनों की तरबियत हो रही है। मैं बहुत अदब से उनसे गुजारिश
साथ से he has started introducing me and by introducing मुझे लगा था हिंदी में चल रहा है, हालांकि मेरी हिंदी इतनी खराब नहीं है। जब मैं लखनऊ में शुरू में आया था, कोई लोगों की गलत फहमी थी कि हिंदी नहीं आती होगी, उनसे बैकग्राउंड सिग्नेचर करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मुझे उसकी हिंदी अच्छी आती है, लेकिन जब मुझे बुलाया स्टेज पे, इतने लखनऊ की इतनी आदत थी, कुछ ज्यादा हो गई। मुझे कोई समझ में आ रहा था कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो समझ में आ रहा था कि मेरे बारे में उससे ज्यादा अच्छे बोल रहे हैं। तो मैं उनका कि मेरे बारे में अच्छे इंट्रोड्यूस किया, सबको पता चला होगा, मुझे सब कुछ समझ में आया, लेकिन उनका ही मैं अपने इंट्रोड्यूस किया। आज टीचर्स डे है इंडिया में, जैसे टीचर डे के बारे में पता है, टीचर डे माना जाता है, but I think that in India it's taken more seriously. We have seen on the TV of President of India, our Prime Minister has certain engagement on the Teachers Day. It is widely publicized also. Even few of my international students today morning called me. They had an engagement in Pune on Teachers Day. I just asked the question to all of them, how will you remember today Teachers Day? Different part of the world. They said that we now stay in India in Maharashtra. We have become part of our culture. Teacher, they have to follow the teacher. So I think that most rigorously observing India, and here also second or third program today. So it's a good sign that as per our whole culture or civilization, we respect teachers, and on particular day 2 September, we recall our memories of our good teachers and overall about education. I think that teachers will be changing now thanks to technology. So whatever teacher used to teach in our days, we just have very lucid and very inspiring experiences learning by Professor Khan. हैदराबाद में एटमॉस्फेयर शो का क्रिएट कर दिया पूरा के सामने। लेकिन उस जमाने के टीचर और आज के जो टीचर मेन this has to be said, they must have the good connect with the students, they must have some care for the students. But because of technology, the role of teacher is changing. And unfortunately, our teacher community is not understanding that. Because of technology, teacher is no more expected to do information only, but he has to play a role of more as a facilitator. Because nowadays, our kids know many things more than us. They have a lot of sources of information. Okay, but you have to tell them. Okay, you have to develop the dialogue with them. There has to be one-to-one teacher and student. Application of our main speaker in first university by now. There has to be interaction, more interaction, open discussion. That type of spirit has to be in teaching again. That kind of teaching has to be there because thanks to technology, information part, even collecting of some knowledge part is also can be done by the technology. But make them wise. Okay, to understand the things, you have to develop more interaction with the students. Unfortunately, over the period of time, the interaction between the teacher and student is decreasing. Rather, it has to be more one-to-one-ness. That is a demand of the hour, and that has to be imbibed in our teaching culture. We always talk about our demographic dividend, 50% in population working age group and all these things. Many people say that India will be the power of skilled manpower for the whole world, not only for India but whole world. If that has to happen, when our President Prime Minister said anything, Clean India, Digital India, Make in India, all this to happen, we must develop the right type of manpower. And all education, especially higher education, is about transforming the raw student into a useful human resource. Unless and until we convert the raw student into a useful human resource, needed for the society, needed for the country, and useful also for his family, we are not serving the cause of higher education. And that has to be done in a big way. Again, what we talk in different conferences, in different committees, and ground realities are always different. Okay. Now that one-to-one-ness is gone, even the type of training is expected to be given to the students is so much diluted, so we fear that we may have the
youngsters, if they are not properly trained, they won't acquire enough skills. Okay, that becomes a monster in the population. So many young people, but having the degrees, so many degrees, but they are not able to deliver the goods. Remember, winning the whole Europe and all these things, when in India, if they are not absorbed the job market, that will be a big problem. So many large number of graduates, but not finding suitable job. So, in short, the teachers will become more important today to build the nation, of the stability in the society. If at all we want to make India a superpower, that can be through education, and that can be by creating proper type of human resource which is acceptable globally. Okay? And that type of teaching standard we have to achieve in our colleges and university, and that is the challenge to the today's teacher. Okay? Next, again I will just recalling many things from the speaker. He described about the good teacher. Somebody is lecture, somebody is called a good teacher. I just read the definition of a teacher, a good teacher, and an outstanding teacher. That definition says that teacher is a person who teaches the syllabus honestly. His results are very good. He is regularly taking the classes, doing all their mystery job assigned to him, and draw the salary. That is teacher. That is expected minimum because he is getting money from them. But that is not sufficient. If you want to be a good teacher, you have to be a teacher, means you have to have your duties as required by the job conditions. But apart from that, you must exemplify by your behavior. The research activity, the way we talk with the colleague, the way we talk with the students, all these things. You should be a role model for your students, then only you can be a good teacher. But if you want to be an outstanding teacher, you have to be a good teacher first. You have to teach, you must exemplify your behavior. But more than that, you must inspire your students. As Ansam said, there was an inspiring related to students. That you know that they will be properly inspired. You must be able to create the passion for knowledge among the students. Your students in the classroom. Unless some kind of passion is developed, nobody can succeed. And that can be done by the teacher. That is the manual of the teacher. Once the student gets hired, he can do anything. The teacher will become evil. But you have to inspire the students, and that kind of teachers has to be in number, then only we can, our value system can deliver the goods for the nation. And unfortunately, all of us are inspiring teacher, outstanding teacher, that's the part about teaching in our life. Everybody is here because of you met some outstanding teacher at the primary level or second level, and you may be positive because the outstanding teacher throughout their education career. But somewhere you get an outstanding teacher, you shape your life, shape your career. So you want more number of outstanding teachers who can create the passion for knowledge, passion for excellence among the students. And that is not an easy job. Inspiring somebody to do something extraordinary, the teacher has to be an extraordinary person. And that is the need of the hour. I would need more and more outstanding teachers. I hope that if your country has a lot of positive sides, population, everything is favorable to us. But country has also some negative side. Our education system, especially government-aided system, is not working to its potential. That is our problem. And if all of us were to place our potential, I think that we can do the act of higher education by developing the proper human resource, manpower. We can develop the great nation in this country. We want to be a superpower, not to control others. We want a superpower to have the quality life to teach and to lead. And for that, we need a quality teacher. And only quality teachers can do this. We must regulate this important. As Professor Khan described us by giving so many examples of primary school, secondary school, college level, AG guides, and all these things. Also, I have a long history. I still remember all the teachers from my first standard up to PhD. वो teachers, दो महीने आए थे, 6 महीने आए थे, उसके भी नाम मुझे याद है. Once I just made a list, every teacher's peculiarity I know. I will just give one example of my headmaster when I was in the 4th class. We are in a small village. I know जहाँ नौकर की करते हैं, महाराष्ट्र में तमाशा करते हैं. तो गाँव में तमाशा आ गया तो headmaster was so concerned
about the students. Concern was that nobody should do the city of income commercial. So he was supposed to come from the nearby village on horse. घोड़े पे आते थे. तो स्कूल खत्म होने के बाद 6:30-7 बजे हमें जब भेजते थे खाना खा के आओ जब हमें स्कूल में बंद कर देते थे. Then you used to go to school and again in the morning, early morning, 5 o'clock has to come back to take out of the room. So only for one action that students should not attend that tamasha, he has taken lot of trouble. That was the commitment of it. He was not a great teacher, but the commitment was that level. There was one more thing. He has a connection with the Lucknow, that's why I'm putting it. And I joined MSc in 72 University. At that time, mathematics and science was one department. We have the famous Professor Kuzul Badar, the head of the Department of Statistics and Mathematics. He is the mama of Jain Narlikar. And Kuzul Badar just resigned from the Lucknow University as a reader. He was the first leader in statistics of Lucknow University and joined as a professor at Pune University. And Pune University is called as Navratna, 9th famous professor, one of them was Kuzul Badar, who was just followed from the Lucknow University. I was a mathematics student, but he was so powerful teacher, Kuzul Badar. He tried everything on the blackboard. But he was so powerful teacher that I had out of 15 courses, 5 courses on statistics. At that time, there was no word of like choice-based credit system or intensity or anything. But still, there was a provision that the students can take some statistics courses. And out of these 5 years of other courses. That trained me, whatever I learned about probability theory in 73, I still remember. Okay, that was these teachers make a mark on your mind that you remember for your life and you get guided by their teaching and their advice. Lastly, I want to make again one more remark about Main's lecture about the history of, we talk about history, first research in chemistry because today we have these are all chemistry teachers. Okay. And I just remember I am a student of mathematics and if you go, I learned the history of mathematics out of interest. If you say in a simple word, what is the history of mathematics? We usually say for a common man, the history of mathematics is nothing but arithmetic of Hindu, algebra of Arab, and geometry of Greece. This is a core simplification. Arithmetic of Hindu, algebra of Arab, and geometry of Greece. Because we read all these things. But if you see the history totally, there is always overlapping things. For example, whatever done by the Brahmagupta and Bhaskara first, Bhaskara second, it is all translated in Baghdad Academy and it is gone to the Greece. Again in 15th, 16th century, the same knowledge is borrowed to Arab world to India. Okay. This is to and fro is engagement there. So you can't 100% claim this part of the world, this part of the deep world are originated